بھائیوں، ہمارے اندر ہمارے درمیان یہ کالے اور گورے کا جھگڑا کیوں ہے؟ آج بھی کتنے ایسے کنٹریز کا میں آپ کو نام بتاؤں جہاں کالے انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جہاں کالے انسان کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے چاہے کوئی کالا ہو چاہے کوئی گورا ہو، اگر اس کے اندر دینداری ہے، اگر اس کے اندر تقوی ہے تو اسی انسان کو افضل مانا جائے گا، اسی انسان کو بہتر مانا جائے گا۔ دنیا میں آپ خوب گورے بنیے، دنیا میں آپ کالے سے خوب نفرت کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو میدان محشر میں جمع ہونا پڑے گا، ہم سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اے دنیا میں کالے اور گورے کو لے کر جھگڑا کرنے والوں، اے دنیا میں کالے انسان سے نفرت کرنے والوں، اے دنیا میں گورے ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، سنو اللہ کے نزدیک کوئی کالا نہیں کوئی گورا نہیں، کل قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے وجوہ یومئذ مسفرہ، جن کے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے آئیں گے، حساس و بساس ہو کر آئے گا، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے جن کے چہرے پر گرد پڑے ہوں گے، جن کے چہرے پر مٹی پڑے ہوں گے، جن کے چہرے پر دھول پڑے ہوں گے، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ بدکار ہوں گے، یہی لوگ بے ایمان ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن لوگ اس حال میں آئیں گے کہ کسی کا چہرہ روشن ہوگا، کسی کے چہرے پہ گرد پڑے ہوں گے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ روشن ہو۔ ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسے نیک اعمال کرے، دنیا میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے، کوئی ایسی عبادت اللہ کے نزدیک ہماری مقبول ہو جائے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ روشن ہو کر آئے، ہمارے چہرے پہ گرد نہ پڑے، ہمارے چہرے پہ دھول نہ پڑے، ہم ہنستے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کی خوبصورتی چلی جائے گی، یہ جو بال آپ دیکھ رہے ہیں جن کے اسٹائل کرنے میں نوجوان آج اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، یہ بالوں کی خوبصورتی زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے، یہ انسان کا خوبصورت جسم دنیا میں یوں ہی پڑا رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کیجئے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ روشن ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ نیچ کو ختم کر دیا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں، تمہارا تعلق مسلم قوم سے ہے، تمہارا تعلق اسلام دھرم سے ہے، اور اسلام دھرم نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں، اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اسلام کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ اگر کسی کو دین کا گیان ہے، اگر کسی کو قرآن کا علم ہے، وہی انسان آگے جا کے نماز پڑھائے گا، اور جب وہ نماز پڑھائے گا تو گاؤں کے مکھیا کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، اگر وہ نماز پڑھائے گا تو گاؤں کے سرپنچ کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ختم کر دیا ہے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے مذاہب کا اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، جو آپ کو پتا چلے گا کوئی اگر اونچا خاندان کا ہے، کوئی نیچا خاندان کا ہے، مندر میں چلا جائے، ان کے عبادت خانے میں چلا جائے، اگر نیچی ذات کے لوگ چلا جائے تو اس مندر کو دھلنا پڑتا ہے، اس عبادت خانے کو دھلنا پڑتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اذان ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تمہیں اذان نماز کے لیے بلایا جائے، ایک غریب کے لیے بھی وہی اعلان، اور ایک مسلمان کے لیے بھی وہی اعلان، ایک امیر کے لیے بھی وہی اعلان، ایک کم درجے کے لوگوں کے لیے بھی وہی اعلان، ایک اونچے پوسٹ کے لیے بھی وہی اعلان، سب کو اس مسجد میں جمع ہونا پڑے گا، اور سب کو اللہ کی یہاں سجدہ کرنا پڑے گا، سب کو اللہ کے یہاں سجدہ کرنا پڑے گا۔ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کسی دھرم میں ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہمارے دیش کو آزاد کرنے کے خاطر
जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की है, जो महान नेता थे, जो महान लीडर थे, ज्ञानी थे, दाता थे, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिनको दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। ये कोई बड़ी जात के नहीं थे, बड़ा खानदान के नहीं थे, बड़ी फैमिली के नहीं थे, लेकिन आज इन पर भी तरह तरह की उंगलियां उठ रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुर्बान जाइए ऐसे नेताओं पर, कुर्बान जाइए ऐसे ज्ञानियों पर, कुर्बान जाइए ऐसे महान व्यक्तियों पर। मेरे भाइयों, इस्लाम ये सिखाता है जिसके पास इल्म हो, जिसके पास तकवा हो, जिसके पास अमानतदारी में अमानत का ख्याल रखता हो, मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में वही सबसे बड़ा है। लेकिन आज देख लीजिए कैसे इन लोगों को छुटकारा किया जाता है। आपको मालूम होगा कि देश को आजाद करने की खातिर जिन्होंने कुर्बानियां पेश की है, जो क्रांतिकारी हैं, उनका नाम आज ठुकराया जा रहा है। इतिहास के पन्नों से उनका नाम गायब किया जाता है और यह कहा जाता है कि 1947 में देश को आजादी नहीं मिली, भीख में जो आजादी मिली वो आजादी नहीं है, देश को आजादी मिली तो 2014 में मिली है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने ये नहीं कहा है। इस्लाम ने एक गुलाम का भी ख्याल रखा है। इस्लाम में गुलाम की अहमियत वही है जो मालिक की अहमियत है। आपने सुना होगा एक शेर, आपने ये शेर सुना होगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, महमूद गजनबी एक बादशाह थे, महमूद गजनबी एक आका थे, मालिक थे। उनका एक गुलाम था जिनका नाम अयाज था। ये अपने गुलाम से इतनी मोहब्बत करते थे, अपनी इतनी मोहब्बत करते थे कि जब नमाज का टाइम होता, जब नमाज का वक्त हो जाता था तो ये अपने गुलाम के साथ नमाज पढ़ा करते थे। ये कि सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज के दौर में ऐसा हो सकता है? मेरे भाइयों, नहीं हो सकता है। याद रखिए, हमारा ये देश लोकतंत्र है, यहाँ सबको आजादी है। एक आम इंसान, एक आम पब्लिक किसी विधायक के सामने अपनी मजबूरी बयान कर सकता है, एक आम पब्लिक किसी मुखिया के सामने अपनी परेशानी बता सकता है। ये देश लोकतंत्र है, यहाँ हमें आजादी है, यहाँ हमें अधिकार है, यहाँ हमें हक है। लेकिन मेरे भाइयों, हमने इन हक को फरामोश कर दिया, हमने इन हक को समझा ही नहीं। हम भीगी बिल्ली बने बैठे रहते हैं, किसी के सामने बात करने से डर जाते हैं। लोकतंत्र सही उसी जगह तक है जहां तक मिंबर का मामला हो, जहां वार्ड सदस्य का मामला हो। विधायक के सामने हम और आप भीगी बिल्ली बने रहते हैं। मेरे भाइयों, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि आप किसी विधायक के सामने झुक जाएं, आप किसी मुख्यमंत्री के सामने झुक जाए, आप किसी प्रधानमंत्री के सामने झुक जाए। लोकतंत्र हमें ये आजादी सिखाता है, हमारे लिए और आपके लिए आजादी है कि हम अपनी परेशानी का हल बताएं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में कोई ऊंची और छोटी और नीची जात नहीं है। इस्लाम में ऊंची बड़ी और छोटी और नीची जात नहीं है। इस्लाम में वही बड़ा, इस्लाम में वही इज्जत वाला है जो अल्लाह के नजदीक महबूब हो, जो तकवा इख्तियार करता हो, जो दीनदार हो, जो नमाजी हो, जो मुत्तकी हो, जो दीन का ज्ञान रखता हो, दीन का इल्म रखता हो। लेकिन हमने और आपने यूं समझ लिया, जिनके पास माल और दौलत ज्यादा हो, जिनके पास कोई ताकत हो, जो कोई मुखिया एमपी सरपंच बने हुए हो, वही सबसे अच्छा है। खानदान मुआशरे में ये देखा जाता है, जिसका खानदान बड़ा हो उन्हीं को खुतबा देने की जिम्मेदारी मिलती है। मुआशरे में ये भी देखा जाता है, जिनकी फैमिली बड़ी हो उनके ही फैमिली में से किसी को मेंबर बनाया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम की नजर में एक आका और एक मालिक की हैसियत भी बराबर है, एक मालिक और एक आका की हैसियत भी बराबर है। इस्लाम की नजर में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। हजरत बिलाल जो कि गुलाम थे, हजरत बिलाल एक काले इंसान थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिलाल को ये जिम्मेदारी दी कि ओ बिलाल, तुम आजान देने की जिम्मेदारी संभालो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि ओ बिलाल, तुम खाने काबा में आजान दो। मेरे प्यारे साथियों, बिलाल तो एक काला कलोटा इंसान है, बिलाल तो गुलाम है, लेकिन बिलाल को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ओ बिलाल, तुम मस्जिद में
खाने काबा में आजान की जिम्मेदारी संभलो, आजान देने की जिम्मेदारी संभलो। मेरे प्यारे साथियों, आजान देने की जिम्मेदारी संभालने की बारी अगर किसी की मुकर्रर होती है तो हजरत बिलाल की। यही वो बिलाल है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में गए, आप जन्नत में चल रहे हैं, अपने आगे चलने की आवाज किसी जमीन से सुनाई दे रहे हैं। बिलाल जमीन पे चल रहे हैं, बिलाल की जूतों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। अल्लाह के नबी जन्नत में चल रहे हैं और आपके आगे आगे बिलाल के चलने की आवाज सुनाई देते हैं। आप रुए जमीन में आए, फजर की नमाज के बाद लोगों से खिताब फरमाते कि ओ लोगों, ऐ बिलाल सुनो, ऐ बिलाल सुनो, तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है, कौन सा ऐसा नेक काम किया है जिसके बदौलत मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज सुनी है। हजरत बिलाल कहते कि मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया। जाम लगा हुआ है, रजाकार हजरात से गुजारिश है जिनकी जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी समझें, जाम छुड़ाने की कोशिश करें, लोगों को आने में परेशानी हो रही है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जिम्मेदारी मिली। मेरे प्यारे साथियों, मुआशरे में ये देखा जाता है कि कोई अगर बड़े खानदान का आदमी चोरी करे, बड़े खानदान का आदमी अगर कोई गलत काम करे, चोरी करे, जिना करे, रेप करे, गुनाह करे, तो उनको सजा कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका खानदान बड़ा है। मेरे भाइयों, गलत है, नाजायज है, हराम है। इस्लाम में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप बड़े खानदान के हैं इसलिए आपके ऊपर हद नाफिज नहीं होंगे, इसलिए आप पर सजा मुतय्यन नहीं होंगे। आपको मैं वाक़या बताता चलूं मेरे भाइयों, कुरैश खानदान सबसे बड़ा मुहस्सस खानदान था, कुरैश खानदान सबसे बड़ा खानदान था, लेकिन कुरैश में से किसी एक औरत ने चोरी कर ली थी। जब लोगों को पता चला कि कुरैश में किसी एक औरत ने चोरी कर ली है, कुरैश खानदान में किसी एक औरत ने चोरी कर ली है, कुरैश में ये खलबली मच गई कि कुरैश के एक औरत ने चोरी कर ली है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ काट देंगे। इस्लाम की सजा ये है कि कोई अगर चोरी करे तो उसके बदले में उसका हाथ काट दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरैश में ये खलबली मच गए, कुरैश वाले मशवरा करने लगे, मीटिंग करने लगे कि अब क्या किया जाए। कुरैश में किसी एक औरत ने चोरी कर ली है, अगर उनका हाथ काट दिया जाए तो कुरैश के नाक कट जाएंगे। कुरैश की किसी एक औरत ने चोरी कर ली, बनी मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली है और सहाबा को पता चल गया है, कुरैश वालों को पता चल गया है। कुरैश वालों ने मशवरा किया कि अगर इनका हाथ काट दिया जाए, इन औरत का हाथ काट दिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों ये कुरैश रुसवा हो जाएंगे, कुरैश बदनाम हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कुरैश वालों ने मशवरा किया कि कोई है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सके, अल्लाह के नबी से सिफारिश कर सके, अल्लाह के नबी से जाकर ये कह सके कि अल्लाह के नबी, ये कुरैश की औरत है, इन्होंने चोरी की है और इनके बदले में हद ये नाफिज होंगे कि इनके हाथ काट दिया जाए। अल्लाह के नबी कोई रास्ता निकालिए, कोई गुंजाइश निकालिए। जैसे ये सहाबा मशवरा करते हैं, ये कुरैश वाले मशवरा करते हैं, तो लोगों ने उसामा बिन ज़ैद को चुना, उसामा बिन ज़ैद को चुना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहते थे। कुरैश वालों ने कहा, आए उसामा, जाइए अल्लाह के नबी के पास जाइए और कहिए कि इन औरत को हाथ काटने से बचा छोड़ दिया जाए, इन औरत का हाथ ना काटा जाए। इन औरत का अगर हाथ काट दिया जाए तो कुरैश की नाक कट जाएगी, कुरैश बदनाम हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये उसामा बिन ज़ैद ये कहावत लेकर आए, ये कहानी करके आए, लोगों ने बताया और ये उसामा बिन ज़ैद उनके मशवरे पे बात बताने के लिए आए। मेरे प्यारे साथियों, कुरैश के मशवरे से ये बात बोलने के लिए अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने जब ये जुमला सुना कि कुरैश वालों ने ये हद नाफिज करने से रोक रहे हैं, ये हद नाफिज करने से मुझे मना कर रहे हैं, ऐ उसामा सुनो, इससे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक हो गई थी, इससे पहले बहुत सी उम्मत
उम्मतें बर्बाद हो गई थी। इसलिए कि जब उनमें शरीफ लोग कोई चोरी करता, कोई बेईमानी करता, कोई गुनाह करता तो उनका हाथ ना काटा जाता, उनको सजा ना दिए जाते, उनके साथ कोई जुल्म नहीं किया जाता, उनको यूं ही छोड़ दिया जाता, इसलिए कि वो बड़े खानदान के थे। आए उसामा सुनो, क्या तुम अल्लाह के हुदूद में से एक हद के बारे में मेरे पास शिकायत लेकर आए हो, मेरे पास फैसला देने के लिए आए हो, फैसला लेने के लिए आए हो, मेरे पास मशवरा लेने के लिए आए हो? नहीं नहीं, मैं जरूर उसका हाथ काटूंगा। वो नहीं। अगर फातिमा बिनती मोहम्मद भी, लौ अन्ना फातिमा बिनत मोहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा, अगर फातिमा बिनती मोहम्मद भी चोरी करे, अगर मेरी बेटी यानी मोहम्मद की बेटी भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के दौर में ये देखा जाता है कि कोई बड़े खानदान का है, आज के दौर में ये देखा जाता है कोई ऊंची पोस्ट में है, उनकी लड़की अगर जुर्म करे, उनका लड़का अगर चोरी करे, कि आप लोग अपना ये सेट कर लें और बैठ जाएं। सामईन को परेशानी हो रही है और रास्ता छोड़ के बैठे, रास्ता बना हुआ, रास्ता खुला गया, आप लोग इधर कर लें तो बेहतर होगा। परेशान ना करें, जलसा को डिस्टर्ब ना करें। सामईन को परेशानी हो रही है, बताइए। रास्ता छोड़ के बैठे आप लोग बाहर। मेरे प्यारे साथियों, कुरैश की एक औरत ने चोरी कर ली। जब कुरैश वालों को पता चला और अल्लाह के नबी ने यह सजा मुतय्यन की कि उनका हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि ये इस्लाम में हद है, इस्लाम की सजा ये है इस्लाम में कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। कुरैश वालों परेशान हो गए, कुरैश वाले, और सोचा कि कुरैश की औरत है, अगर हाथ काट दिया जाए तो लोग क्या कहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। इसलिए कुरैश वालों ने मशवरा किया कि किसी को तैयार किया जाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और ये कहे कि अल्लाह के नबी, इसको माफ कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये कुरैश खानदान से है, क्योंकि ये कुरैश कबीले से है, बनु मखजूम की औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इससे पहले जो लोग थे, इससे पहले जो उम्मती थे, इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि जब उनके अंदर बड़ा खानदान के कोई लोग चोरी करता, जब कोई गुनाह करता उसको माफ कर दिया जाता, और जब कोई छोटे खानदान के लोग गुनाह करते उसके ऊपर हद नाफिज करते। मेरे प्यारे साथियों, फिर आपने फरमाया लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा, अगर फातिमा बिन्त मुहम्मद यानी मुहम्मद की बेटी भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। इस्लाम की नजर में ये नहीं देखा जाएगा कि कौन मोहम्मद है, इस्लाम की नजर में ये नहीं देखा जाएगा कि कौन मोहम्मद की बेटी है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में सजा मुतय्यन है तो सबके लिए है। मैं कह रहा हूं इस्लाम में कोई काला और गोरा का फर्क नहीं है, इस्लाम में कोई छोटी जात और बड़ी जात नहीं है। अल्लाह ने जाहिर सी बात है कुंबे और कबीले में बांटा है, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू, इस मकसद पर बांटा है, इस बुनियाद पर बांटा है कि आप एक दूसरे को जान जाओ। लेकिन मेरे भाइयों, आप एक दूसरे पर फख्र करने के लिए आपको ये कुंबे और कबीले में नहीं बांटा है। एक गुलाम का हवाला देकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम को ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस्लाम ने यहां तक हक जतलाया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, आपका पड़ोसी को भी पहले खाना मिलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अब्दुन, कोई बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता, कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता, हत्ता युहिब्बा लिजारिही, जब तक वो अपने पड़ोसी से मोहब्बत ना करने लगे। किसी हदीस में कहा कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए वो चीज पसंद करता हो वो दूसरे भाई के लिए ना करने लगे। यानी आप जो पसंद करते हैं अपने दूसरे भाई के लिए भी करिए। ये इस्लाम में हमें और आपको तालीम देता है, ये इस्लाम की तालीम है। लेकिन कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनामी करने के में तुले हुए हैं। आज देख लीजिए, आए दिन सोशल मीडिया पर जहरीला सांप जो हिंदुस्तान में पनपते हैं बाबाओं के नाम से। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस्लाम हमें और आपको तालीम ये देता है, शिक्षा देता है, हम सब मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब भाई भाई हैं, पड़ोसी को हक दे। मेरे प्यारे साथियों, ये एक इंसान अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए,
جن کا نام سمامہ تھا. جب اللہ کے نبی کو پتا چلا, صحابہ کو پتا چلا کہ یمامہ کا گورنر ہے, اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھومتا پھرتا ہے, جب پکڑ لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, تو میرے پیارے ساتھیوں سمامہ ابن وصال سے کہا گیا کہ تم میری طرف دیکھو. اللہ کے نبی نے کہا تم میری طرف دیکھو, میں تمہیں چھوڑ دوں گا, میں تمہیں آزاد کر دوں گا. سمامہ ابن وصال کا جواب یہ تھا. سمامہ ابن وصال اللہ کے نبی کو گندے چہرے سے دیکھ رہے تھے, گندے چہرے سے تعبیر کر رہے تھے. آپ کی بستی کو گندا کہہ رہا تھا کہ یہ بستی گندی ہے, آپ کا شہر گندا ہے, آپ کا چہرہ گندا ہے. جس چہرے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے, جس چہرے کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. جس چہرے کے بارے میں کبھی حسان بن ثابت نے کہا تھا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میرے پیارے ساتھیوں حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل کسی کا چہرہ نہیں دیکھا, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کو پتا چلا, پھر بھی آپ نے اس کو آزاد کر دیا. اتنا بڑا مجرم جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے, جو قتل کرنے کے ارادے سے آئے, اس کی سزا یہی بنتی اس کو قتل کر دیا جائے, لیکن پھر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری اللہ ہمارے اندر اونچ نیچ کو ختم کر دے, ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر قائم عطا فرما. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.